The decision that was made is that the deal has been invalidated due to procedural issues. It was introduced in 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसने अलाउ कर दिया था एनोनिमस फंडिंग को। तो गुजरात गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था ये वैसे ही null and void मान लिया जाता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे कई सारे जजमेंट्स लिए जिन्होंने रीडिफाइन किया है हमारी लीगल इंटरप्रिटेशन को और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डाला है हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप पे। Today I, Ankita Rawat, I am here to tell you all those top 5 landmark Supreme Court cases of 2024. इस सीरीज में सबसे पहले हमारे पास जो नंबर 5 पे आ जाता है वो होता है JSW स्टील भूषण पावर डील। अगर हम इस डील के बारे में जाने तो JSW स्टील ने एक्वायर करी थी भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड अंडर IBC 2016, that is Insolvency and Bankruptcy Code of 2016, so as to revive or rescue this particular company from bankruptcy. Now, the decision that was made is that the deal has been invalidated due to procedural issues. बहुत सारे procedural issues थे जिसके कारण इस deal को invalidate कर दिया गया। Now, वो क्या issues रहे होंगे उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला तो ये था there was a delay, 2.5 years का delay था इस particular डील में जिसके कारण काफी सारी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी हमारे इन्वेस्टर्स को। उनका कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था इस पर्टिकुलर डिले से। इसके अलावा प्रोसेस भी जो था, प्रोसेस में काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि क्लियरली मेंशन्ड नहीं थे। एट द एंड बिकॉज ऑफ दिस इट लेड टू इंडियाज लार्जेस्ट एवर कॉर्पोरेट लिक्विडेशन। अब इस कंपनी के जितने भी एसेट्स होंगे दे विल बी सोल्ड एट डर्ट चीप प्राइस। इसके अलावा अगर हम देखें जो सिग्निफिकेंस जो चीज़ है जिसने इस पर्टिकुलर केस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना दी है वो है बिकॉज इट हैज़ रेज्ड कंसर्न ओवर IBC एफिशिएंसी एंड लीगल सर्टेनिटी। बिकॉज IBC जो कि अपने आप में इसीलिए बनाया गया था सो एज टू रिवाइव दीज 6 कंपनीज, द स्ट्रक्चर कोलैप्स्ड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर केस। दिस डिसीजन वाज made by a bench of 2 judges who were Justice Bela Trivedi and Justice Satish Chandra Sharma. So these were the judges who were part of the bench that took this decision. Now, if I talk about second in number, or we can say the fourth in position that we have, is Madarsa ban overturned. Now, Madarsa ban, if we understand the background of this case, we can see that Allahabad High Court ने declare कर दिया था पूरे मदरसा एक्ट को unconstitutional declare कर दिया था। Because of this, the board went to Supreme Court and as per the decision made by Supreme Court, जो कि Supreme Court ने overturn कर चुका था High Court का ये decision, Supreme Court said that instead of banning or instead of declaring the entire act unconstitutional, Allahabad High Court should have simply banned those portions of this act that were going against fundamental right. केवल उतने portions को ही ban करना चाहिए था। Now we can see here it has reinstated legality of madrasa education and protected rights of 2.7 million students. It is very, very significant because it has at the end proved that we are still there, Supreme Court is still there to uphold minority rights and Article 30 of the Constitution. There is nothing beyond the Constitution. Fine. So that is how we had our fourth case when it comes to the top 5 cases of Supreme Court, top 5 landmark cases of Supreme Court. This particular decision was taken by a bench of 3 judges in which we had CJI D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Mishra. These were part of the bench. Now third in number we have Tamil Nadu versus Governor case. If you understand the background of this particular case, we can see that the issue was that there was a delay in governor's assent through Tamil Nadu's bill. Many of the bills were not being signed by the governor of Tamil Nadu, and ultimately in April 2025 Supreme Court made this decision. It had laid those clear guidelines for timely assent. Timely signature अगर हमारे हो जाए, timely जो governor है एक तरीके से वो जो assent कर दे उन bills
को, उसके रिगार्डिंग ही ये जजमेंट लिया गया है। अर्लियर अंडर आर्टिकल 200 there was the power mentioned in which government can either assent, withhold or reserve the bill, right? But इसमें जो था एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड मेंशन नहीं था, विच रिजल्टेड कि गवर्नर कई बार अपनी इस पावर का मिसयूज करते हुए जो बिल है उन्हें इनडेफिनेटली डिले कर रहे थे। एंड अल्टीमेटली आफ्टर दिस जजमेंट इट हैज बीन रीइंस्टेटेड दैट कि अब जो बिल्स हैं वो कभी भी इनडेफिनिट टाइम के लिए डिले नहीं हो पाएंगे। देयर हैज बीन अ टाइम पीरियड मेंशन ऑफ 1 month ओनली एंड इट हैज फाइनली स्ट्रेंथेंड द फेडरलिज्म एंड लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी एज वेल व्हेन इट कम्स टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, second in number we have electoral bond judgment. Now if we understand this scheme said that it was introduced in 2017 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसने अलाउ कर दिया था एनोनिमस फंडिंग को। दैट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज को अब डोनेशंस मिल सकते थे बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के, यानी कि कोई भी इंसान जो है कितनी भी अमाउंट का डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकता था ना। इसमें ये चीज़ गड़बड़ी हो रही थी कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम थी इसमें ये क्लियरली मेंशन नहीं हो पा रहा था या क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो पैसा आ रहा है वो व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है। सो the judgment was made in February 2024 that is struck down as violative of Article 19(1)(a. उसी के अंडर ही ये पर्टिकुलर स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई थी बिकॉज इट वायलेटेड राइट टू इंफॉर्मेशन। एज वी सेड दैट कि जिस तरीके से ये एनोनिमस फंडिंग आ रही थी, वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वी वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एनीथिंग अबाउट द वन हु इज गिविंग दोज फंडिंग्स। उसके बारे में कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही बड़ा रिस्क हो रहा था हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए। उसमें करप्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते थे इस पर्टिकुलर स्कीम के कारण। एंड देयरफॉर इट वाज देयर आफ्टर ऑल प्रमोटिंग ओपेक पॉलिटिकल फंडिंग। दैट इज वाई इस पर्टिकुलर स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इट गेव अ मेजर बूस्ट टू इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी एंड वोटर अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ दिस अब क्या हुआ था, एक तरीके से एक ट्रांसपेरेंसी मिल गई थी, वही ट्रांसपेरेंसी जो कि इस पर्टिकुलर स्कीम के कारण बंद हो गई थी। तो इस जजमेंट ने हमें वापस से वो अवेयरनेस और वो राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हमारा हक है वो हमें दिला दिया था। इसी में अगर हम सबसे पहले नंबर पर हमारा जो केस आ जाता है वो आ जाता है बिल्किस बानो केस, जिसमें कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्वैश कर दिया था गुजरात गवर्नमेंट का रिमिशन ऑफ 11 कन्विक्ट्स का जो सेंटेंस था वो क्वैश कर दिया गया था। बैकग्राउंड देखें तो बिल्किस बानो जो कि 2002 ऑफ गुजरात राइट्स में गैंग रेप का शिकार थी, उन्हीं के केस के रिगार्डिंग ये पूरा वर्डिक्ट आया था। जो गुजरात गवर्नमेंट का डिसीजन था रिमिशन प्रोवाइड करवाने का वो एक तरीके से क्वैश कर दिया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाय गिविंग सम पॉइंट्स लाइक कि ओनली महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैड अथॉरिटी फॉर रिमिशन। ये जो अथॉरिटी थी ये केवल महाराष्ट्र के पास ही थी। तो गुजरात गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन था ये वैसे ही नल एंड वॉइड मान लिया जाता है। दूसरी चीज क्रिटिसाइज किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दैट दिस पर्टिकुलर कंडक्ट वाज कंसिडर्ड टू बी बायस्ड। हमारे जो ये पर्टिकुलर केस में दोज 11 कन्विक्ट्स जो थे उनको एक तरीके से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा सुनाया गया था और इस केस में गुजरात गवर्नमेंट ने उसी के अगेंस्ट जाते हुए ये रिमिशन प्रोवाइड करवा लिया था। तीसरी चीज बोली गई थी दैट इट had ordered convicts back to prison within 2 weeks। 2 हफ्ते के अंतराल ही जजमेंट के जो कन्विक्ट्स थे उनको वापस जेल में भेज दिया गया था। इसका जो सिग्निफिकेंस हमारा सबसे पहले जो आ जाता है वो ये आ जाता है दैट इसने फाइनली रीइंफोर्स कर दिया जस्टिस। जो कि विक्टिम थी उनको फाइनली जो है जस्टिस मिल गया था दोबारा और एक तरीके से हम बोल सकते हैं थे क्लैरिफाई कर दिया था फेडरल पावर इन रिमिशन। ये वाला जो जजमेंट था ये हमारा लिया गया था ऑनरेबल मिस जस्टिस BV नागरत्ना के द्वारा और 8th January 2024 was the day that we are supposed to mark.
So these were the top 5 judgments made by Supreme Court of India in 2004 and 2025 including we can say. So आप लोग को जाना है सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे, अड्डा 247 आप लोग टाइप करेंगे तो हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, स्क्रॉल करते हुए हम लोग जाएंगे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम के सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद लॉ एंट्रेंसेज में जाना है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लॉ के काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, CUET LLB की बात करें बेटा हम लोग तो हमारे जो 3 ईयर LLB कोर्स है उसके लिए हमारे पास महापैक प्रो भी है, महापैक है। ठीक है, प्रहार प्रो बैच चल रहा है, प्रहार प्रो 2.0 बैच भी चल रहा है जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स भी मिलेंगी एंड प्रो बैचेस जो हैं बेटा उसमें आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवाई जाएगी बुक्स की। ठीक है, और अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है हमारा यहाँ पे। इसके अलावा क्लैट का अगर हम देखें बच्चों तो क्लैट पे भी हमारा जो है सेम कोर्सेज हमारे क्लैट के लिए भी हैं। 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए हमारे पास महापैक है, महापैक प्रो है। ठीक है, रैंकर्स प्रो 2.0 बैच जो कि स्पेसिफिक क्लैट पे फोकस करता है वो है। सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिल जाएंगी और आपको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी प्रो बैचेस में जो है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, वो सारी चीज़ें जो आप लोगों को चाहिए अपनी प्रिपरेशन में हमारे जो बैचेस हैं वो आप लोगों को दे देंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपने आप को इन बैचेस में एनरोल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन, फॉर मोर सच अपडेट्स, do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much.